हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को एक दूसरी वैकेंसी भी आई थी यूपीएससी के थ्रू। सेम जब ये एलए का आया था सेम उसी टाइम पे इसका भी आया हुआ था। इसका सीरियल नंबर 58 था। वैकेंसी नंबर था 26060658 जिसमें टोटल 5 वैकेंसी थी। ये वैकेंसी था फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। इसमें टोटल 5 वैकेंसी थी और इसका भी स्टार्टिंग डेट वही 13 जून से हुआ था और लास्ट डेट 3 जुलाई था। वैकेंसीज आप लिस्ट वाइज देख ही सकते हो किसमें कौन सी कितनी वैकेंसी थी, ये आप नोटिफिकेशन में चेक किए रहेंगे। बेसिकली मैं इसका आज आप लोगों को सिर्फ सिलेबस बताना चाहूँगा। सिलेबस और अपना कुछ सिलेबस जो कि एक्सपेक्टेड सिलेबस है, फाइनल तो हम नहीं बोल सकते। फाइनल तो इसका पे स्केल लेवल 7 का है इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। एज 30 years for UR, 33 years for OBC, 35 years for SC. There is the further relaxation up to 10 years for WBD. Essential qualifications: education, bachelor degree in law from a recognized university of or institute. Note the qualifications are relaxable at the directions of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing. In the case of candidate otherwise well qualified. Duties: assistant public prosecutor will be perform all such duties which have allotted by deputy legal advisor, senior public prosecutor in consultations with head of branch. Assistant public prosecutor will conduct the prosecutions of case allotted by the senior public prosecutor. Assistant public prosecutor will submit court diaries and keep the senior public prosecutor and head of branch informed of all developments in case. Assistant public prosecutor will ensure maintenance of records and register and prepare such statements, written and reports as may be directed by the senior public prosecutor or head branch. Assistant public prosecutors will give comments on final report. Other details: the post is permanent, general central service, group B, gazetted, non-ministerial. Probation period 2 years. Note there shall be a mandatory induction training at least 2 weeks duration of the successful completions of the probations as prescribed by the central government. Headquarters New Delhi. However, candidates are liable to serve anywhere in India. Any other conditions? The clarification regarding PWD suitabilities subcategory: HDSI without any associate, neurological, limb and dysfunctions. तो इसका कहने का यही कि आपको पूरे इंडिया में कहीं भी ड्यूटी करना पड़ सकता है। हेड ऑफिस तो इसका न्यू दिल्ली में है, लेकिन इंडिया में कहीं भी आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। 2 साल का इसका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसमें 2 वीक का ट्रेनिंग रहेगा उसके बाद। तो चलो हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस फर्स्ट: असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस CBI. दिस इज द बेसिक एक्सपेक्टेड सिलेबस फ्रॉम विच क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन द फर्स्ट रहेगा इसका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड, द भारतीय न्याय संहिता 2023, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द कंपनीज एक्ट 2013, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, the Prevention of Money Laundering Act 2002, the Delhi Special Public Establishment Act 1946, the Environment and Protection Act 1986, the Competition Act 2002. ये टोटल 12
बेयर एक्ट्स है, 12 एक्ट्स हैं जिसके बेयर एक्ट्स आपको रीड करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे, सेक्शन समझने पड़ेंगे। इसका स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। रीड बेयर एक्ट्स 3 टाइम मिनिमम। फर्स्ट, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सेकंड, मेमोराइज द सेक्शंस, डेफिनेशन, एक्सेप्शंस। थर्ड, द रिवीजन विथ MCQs. Remember important sections and articles. Focus on the frequently asked questions. Learn definitions, penalties, procedure, and exceptions. Solve 10,000 plus MCQs. Practice previous year papers. Solve daily MCQs. Maintain notebook for wrong answer. इसका 10,000 MCQs के लिए आपको मैं इसके पहले जस्ट मैंने वीडियो डाला हुआ था, उसमें बताया आपको, इसमें फिर से बता दे रहा हूँ। 10,000 MCQs मतलब रिलेवेंट टू दिस बेयर एक्ट्स, अबव बेयर एक्ट्स, जैसे कि ऊपर दिए गए जो भी बेयर एक्ट्स थे उसके 12 बेयर एक्ट्स जो थी रिलेवेंट टू दिस रहना चाहिए कम से कम। जैसे आपका BNS है, BSA है और BNSS है और कॉन्स्टिट्यूशंस है, ये तो कोर है आपके 50%। तो इससे मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपका कवर हो जाएगा। इसमें 120 क्वेश्चन में 50% मोस्टली कवर होना चाहिए। तो ये चारों 5 सब्जेक्ट के लिए आपको एटलीस्ट 5,000 MCQs तो कर ही लेना चाहिए, जो कि प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम से, जो हाई लेवल एग्ज़ाम लाइक UPSC या फिर UPSC जजेस एंड जुडिशल एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है उसका MCQs सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, उससे टैली करो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, UPSC को समझो वो भी क्या क्वेश्चन। जैसे भी जस्ट लेटेस्ट प्रीलिम आप लोगों ने देखा कितना घुमा के, मतलब घुमाया तो क्या था, क्वेश्चन तो वही थे बट थोड़ा सा आपको डाइवर्ट किया हुआ था, जिससे आपका टाइम कंज्यूम हुआ था। सेम उसी हिसाब से UPSC कर सकता है, क्योंकि कंपटीशन इतना है तो कुछ ना कुछ तो अलग नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा। ओके, थर्ड आपका अगर रिवाइज लैंडमार्क जजमेंट्स, रिमेंबर्स केस नेम, ईयर, लीगल इशूज एंड प्रिंसिपल्स एंड रेशियो जो भी डिसाइड हो रहेगा। स्टडी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट। फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल एंड कॉर्पोरेट लॉ डिसीजंस। इसमें आपको रिलेवेंट जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट्स आए होंगे रिलेवेंट, तो ये सब आपको लेटेस्ट थोड़ा रीड करने पड़ेंगे। और रीड कैसे करने पड़ेंगे, उसके केस का नाम, ईयर, लीगल इशूज़ क्या हुआ था एंड प्रिंसिपल्स क्या था, रेशियो कैसा डिसाइड क्या हुआ, वो सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और आपका प्रिपेयर लीगल मैक्सिमम एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, ऑडी एल्ट्रम पैटर्न, ये क्या होता है, हियर द अदर साइड्स। रेस जुडिकेटा मीन्स होता है ए मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स मीन्स होता है सर्टेन एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कैन नॉट बी अमेंडेड, उसको नहीं छेड़ा जा सकता, नहीं बदला जा सकता। और नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल इंश्योरिंग फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग। एक थर्ड आपको उसके बाद करना पड़ेगा, आपको मेक अ शॉर्ट रिवीजन नोट्स, 1 पेज नोट्स फॉर ईच एक्ट्स। 1 पेज जैसे आपके बड़े एक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गए और BNSS हो गए, ये सब के लिए आपको 2 पेज भी यूज कर सकते हो, बट 1 से 2 मैक्सिमम आप बनाओ। उसमें उसको उसी हिसाब से डिसाइड करो आपको कैसे रटना है उसको। इंपॉर्टेंट सेक्शंस, केस एंड कीवर्ड्स ओनली। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट रेगुलरली, आपको डेली, अभी भाई इसमें LLB LLM हो, प्रैक्टिशनर हो, तो आप तो डेली, अभी तो ऐसा है नहीं कि आप फिर से बेयर एक्ट्स ये सब लेके बैठ के पढ़ोगे, रीडिंग करोगे। कुछ चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पता रहेगी, तो उसी बेसिस पे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। फाइनल रिविजन स्टडी आपका रहेगा लास्ट 15-30 डेज ओनली। रिव्यू द बेयर एक्ट्स, MCQs, जजमेंट एंड नोट्स। अवॉइड स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स मीन्स आप बेयर एक्ट्स कोई जो भी आपको अभी तक रीड कर लिए तो ठीक है, 30 दिन एग्ज़ाम के 30 दिन पहले तक तो न्यू बेयर एक्ट्स मत पढ़ो, जो पढ़ लिए तो ठीक है, उस पर रिविजन करो, क्वेश्चंस देखो, ठीक है। इसमें UPSC के थ्रू 120 क्वेश्चंस जो कि 2 घंटे मतलब 2 आवर्स में ही पूछे जाते हैं। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने माता पिता, गुरुजन तथा देश का नाम रोशन करें। आपकी तरक्की से आपके परिवार का सम्मान बढ़े और हमारा भारत भी प्रगति के नए शिखर तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।